Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem and Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope that you are doing great at your homes. So students, today we are going to study our new topic that is new and that is a measuring instrument and is known as screw gauge. So before that, what we have been studied, um, meter ruler, ठीक है. उसके बाद we have been studied measuring tape, then vernier caliper, and today we are going to study about screw gauge and some other measuring instrument. So first of all we have been using measuring instrument that is known as ruler. Then if we can't get our accurate measurement between 0.5s, so we introduce another measuring instrument, that is measuring tape. After measuring tape, we introduce another instrument, scientists, that is more accurate for taking our readings, that is vernier caliper. And after vernier caliper, scientist has been use another instrument that is known as screw gauge. Now what is screw gauge? As you know that these all are measuring instruments which is used to measure a device. It is a device which is used to measure the thickness of small object accurately and perfectly, is known as screw gauge. What is screw gauge? It is a circular it is a device which is used for measuring instrument for the thickness of small objects accurately. Now what is this? This is how vernier screw gauge looks like, right? Now what is this? This is a U-shaped frame. It consists of two scales, same as that, but vernier scale consists of a main scale and a vernier scale. But in this case we have one is known as main scale, another is known as circular scale. At the end of it, we have circular scale, we have a ratchet. This is U-shaped frame. There are two knobs. One is known as stud, one is known as spindle, and here we have a small circular cylinder which is we are going to measure its length. So this is the overall look of screw gauge, that how it look like. Here we have main scale, which is we are reading, and this is circular scale we have reading. So circular scale is a rotating scale. Okay, now first of all, what is screw gauge? I have been told you it is used for the measuring of thickness of a small object. Now as you know that it consists of a U-shaped metal frame. At one of the frame is fitted with a stud A and other end is fitted with a hollow cylinder, as shown in the figure. Now there is at the end of cylinder ratchet. There is a circular scale and there is a in circular scale it consists of 50 divisions, or 100 divisions. Now how we can find out the least count? Now how we can find, for example, in this case we have 50 circular divisions. 50 circular divisions. How we can find the least count? We can find the least count by the pitch of screw gauge divided by the total number of divisions, so we can get a least count. For example, we have 50 circular scales, and pitch of screw gauge is, for example, 0.5 millimeter. So we will divide 0.5 by 50, so we get our 0.01 millimeter. So we can find the least value, जिसका हम diameter या thickness find कर सकते हैं, least से least value, and is known up to we can find a value up to 0.01 millimeter. जिसकी thickness हम find कर सकते हैं up to 0.01 millimeter, accurately. Now सबसे पहले हम लोगों के जो सामने हम लोगों ने किस में पढ़ा? हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा. ज़ीरो एरर हमने पढ़ा, हमने पॉजिटिव एरर पढ़ा, हमने नेगेटिव एरर पढ़ा, नॉन ज़ीरो एरर पढ़ा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है स्क्रू गेज लेंगे, हम उसमें देखेंगे एरर है कि नहीं है. इफ़ देयर इज़ एन एरर, सो वे हम लोग देखेंगे कौन सा एरर है. मे बी वो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्क्रू गेज ले लिया, उसके स्पिंडल और स्टड को हमने रिचेट की मदद से क्लोज कर लिया. और हम लोगों ने देखा
क्या देखा कि मेन स्केल का ज़ीरो अगर सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड कर रहा है तो वो नॉन ज़ीरो एरर है. इफ़ द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल एंड ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, कंसाइड विद ईच अदर, ठीक है, एग्जैक्टली, देन वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो ज़ीरो एरर. ठीक है. नाउ इफ़ इन अनदर कंडीशन we see that the main scale of 0 and the circular scale of 0 doesn't coincide, then what we observe that there must be an error. Now how we can calculate an error? We can calculate an error by the two things. It may be positive error or it may be a negative error. ठीक है. नाउ अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर है तो हम लोगों ने उसमें क्या देखा था वर्नियर कैलिपर में कि वर्नियर स्केल और उसका मेन स्केल की वैल्यू अगर, ठीक है, आगे चली जाती है, राइट साइड में चली जाती है, तो देयर में भी पॉजिटिव एरर. और अगर हमारे पास जो वैल्यू है नेगेटिव साइड में चली जाती है तो हम क्या कहते हैं, देयर मस्ट बी अ नेगेटिव एरर. ठीक है. अगर पॉजिटिव एरर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव एरर होगा तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव एरर होगा तो उस एरर को हम लोग ऐड करेंगे ना. इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है. ठीक है. ये दोनों ज़ीरो हमारे पास आपस में कंसाइड हो गए तो नॉन ज़ीरो एरर. ना इफ़ देयर इज़ ज़ीरो कंसाइड नहीं हुए तो हम लोग चेक करेंगे पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है. इफ़ दिस इज़ द मेन स्केल ज़ीरो, ठीक है, इफ़ ज़ीरो, ठीक है, ऑफ सर्कुलर स्केल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया है तो देयर में भी अ पॉजिटिव, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव एरर करेंगे. ठीक है. जब ज़ीरो हमारे पास जो होगा नीचे चला जाएगा और वैल्यूज़ हम लोग ऊपर देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि देयर में भी अ पॉजिटिव एरर. ठीक है. जैसे कि हम लोग नॉर्मल देखते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे देखते हैं. यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव है. यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं हम कहते हैं नेगेटिव है. ठीक है. ये ज़ीरो है. ज़ीरो से ऊपर अगर वैल्यूज़ हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव है. ज़ीरो अगर नीचे चला गया है तो हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव एरर. तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ज़ीरो हमारे पास जो है ऊपर चला गया है. ठीक है. ज़ीरो जब ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव एरर होगा, ज़ीरो जब नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव एरर हो जाएगा. सो हम लोग क्या कह रहे हैं, जब हमारे पास पॉजिटिव एरर होता है तो हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. अगर पॉजिटिव एरर होता है तो हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं. अगर नेगेटिव एरर होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. ठीक है. ना फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंडीशन है. ठीक है. इसमें हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल, हमारे पास सर्कुलर स्केल की वैल्यू हमारे पास हम लोग पहले देखेंगे, फिर मेन स्केल की वैल्यू देखेंगे. फॉर एग्जांपल सर्कुलर स्केल को हम वाई कर रहे हैं और मेन स्केल को हम एक्स कर रहे हैं. मेन स्केल की वैल्यू देखेंगे और सर्कुलर स्केल की. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेन स्केल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5.5. ठीक है. इसका एक स्केल 5 का यहाँ पर है तो हम 5.5 देखेंगे. ठीक है. मेन स्केल की वैल्यू लिख ली ना. वाई हम लोग सर्कुलर स्केल की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रही है, एग्जैक्ट 28 आ रही है. हम 28 लिख लेना. हम क्या करेंगे, 28 लिख लेंगे. अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कौन सा एरर है हम देखते हैं. ठीक है. ना हमारे पास क्या है, y एज वी नो दैट y इज़ इक्वल टू 28. ठीक है. जो हमारे पास सर्कुलर स्केल की वैल्यू होगी उसे हमेशा हम लोग लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर में करते थे. ठीक है. तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज़ 0.288. ठीक है. सर्कुलर स्केल की भी वैल्यू आ गई, मेन स्केल की भी वैल्यू आ गई. ठीक है. नाउ फिर हम क्या करेंगे, टोटल रीडिंग निकालने के लिए हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है. ऐड कर देंगे. ठीक है. मेन स्केल की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया और स्केलर तो हमारे पास जो है वैल्यू आ गई. नाउ अब हमारे पास अगर पॉजिटिव एरर है और नेगेटिव एरर है उसका क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, अगर तो पॉजिटिव एरर हुआ तो हम उसको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरर को. अगर नेगेटिव एरर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एरर को ऐड कर देंगे. ठीक है ना. अगर हम लोग एक एग्जांपल लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, स्क्रू गेज में हम लोगों ने देखा कुछ एरर्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ज़ीरो मेन स्केल का और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कंसाइड नहीं हुआ तो हमारे पास एक कंडीशन आती है नेगेटिव एरर की, एक कंडीशन आती है पॉजिटिव एरर की. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल एरर हमारे पास हम लोगों ने देखा. ठीक है. हमने स्क्रू गेज में देखा, हम लोगों ने क्या देखा,
हमारे पास एरर देखा, ठीक है। हम लोगों ने पहले ज़ीरो, ठीक है, और उस वैल्यू के दरमियान हम लोगों ने स्केल्स डिविजन्स काउंट की, ठीक है। टोटल डिविजन्स काउंट करेंगे, ठीक है, जितनी उसमें आएंगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ज़ीरो यहाँ पर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडीशन मैंने नहीं ली, फॉर एग्जांपल ज़ीरो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से और ये वाली लाइन कंसाइड करिए तो 1 2 3 4 5 इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे बल्कि डिविजन्स काउंट करेंगे जैसे हम वर्नियर कैलिपर में करते थे। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे 5 डिविजन्स हैं और ज़ीरो यहाँ पर है, ठीक है। ज़ीरो यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डिविजन्स ले लेंगे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एरर आ जाएगा, ठीक है। ये एरर आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग क्या कर देंगे, मेन स्केल की वैल्यू ले लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की, मेन स्केल की वैल्यू देखी जो 5 मीटर थी, ठीक है, मिलीमीटर थी। फिर मैंने सर्कुलर स्केल की लेकर उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर टोटल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होता है कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को हम ऐड कर देते हैं और जो एरर आता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरर आ गया जो कि नेगेटिव एरर था, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव एरर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर में हम लोग क्या करेंगे, मेन स्केल की सर्कुलर स्केल की वैल्यू लिखेंगे, एरर निकालेंगे, ठीक है। जितने डिविजन्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। और वो जो एरर आ जाएगा उसको उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास पॉजिटिव एरर है तो हम उसमें वैल्यू को, एरर को नेगेटिव करेंगे यानी कि माइनस करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास हो जाएगी स्क्रू गेज की वैल्यू। तो स्क्रू गेज क्या है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ स्क्रू गेज लुक लाइक, ठीक है। लीस्ट काउंट निकालते हैं, लीस्ट काउंट हमारे पास होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, दैट इज़ टोटल 0.01 मिलीमीटर। इससे हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट इतनी जो है थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर हम एरर देखते हैं, नेगेटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ज़ीरो कंसाइड कर रहे हैं, नॉन ज़ीरो एरर है, नहीं कर रहा, ठीक है, तो एरर होगा पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर होता है तो हम वैल्यू को, जो एरर होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एरर होता है तो वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो हैं कुछ और भी टॉपिक्स थे जो कि है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं जिसको हम लोग फिज़िकल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। फिज़िकल बैलेंस इट ऑल्सो डिवाइस, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस है। मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो पहले ज़माने में हम करते थे, ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 पेन्स होते हैं इसमें, लेवलिंग स्क्रूज, ठीक है, होते हैं, ठीक है। इसमें जब हमने एक चीज़ को मेजर करना होता है उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखना होता है, 2 तराजू ले लिए, एक इधर एक इधर। हम देखते हैं इसका जो है वज़न कितना है तो अकॉर्डिंग टू उसके हम लोग यहाँ पर पत्थर लिखते हैं, 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है, 8 kg है, इस तरह हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैन को राइज़ करते हैं, ठीक है। फिज़िकल बैलेंस की अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, सो दिस इज़ हाउ फिज़िकल बैलेंस लुक लाइक, ठीक है। ये इसके एडजस्टमेंट नोड्स हैं, ये पैन है, ये स्केल है, ये पॉइंटर है, ये बैलेंसिंग स्क्रूज हैं, बीम्स हैं, नाइफ हैं, पिलर्स हैं, प्लम लाइन है और लेवलिंग स्क्रूज है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइज द पैन ऑफ द बैलेंस विद द हेल्प ऑफ नॉब, ठीक है। नॉब में हम लोग एक जगह लेते हैं, नाउ सेट करते हैं एट द एंड ऑफ द पॉइंटर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ स्केल विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रूज, ठीक है। नाउ ब्रिंग द नोब्स टूवर्ड इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। नाउ प्लेस द बॉडी इन द लेफ्ट पैन, द स्टैंडर्ड मासेस इन द राइट पैन। नाउ फिर हम लोग इसको फाइंड, एक उधर रखते हैं, एक उधर रखते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, फिजिकल बैलेंस इज जस्ट कॉमन बैलेंस वेयर 2 पैन्स, ठीक है। पैन्स को हम लोग लेते हैं, यूज टू मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय पुटिंग वन पैन एंड इज नोन एज वेट, एंड एक में पैन में जिसका वेट करना है और दूसरी जहाँ पर वेट रखा जाता है। फिजिकल बैलेंस इज सेंसिटिव कॉमन बैलेंस एंड मेजर वो करते हैं वेट को इन अ ग्राम ऑर्डर। इट इज़ प्लेस इन अ प्रोटेक्टिव ग्लास के सो दैट इवन डस्ट और विंड भी उसमें ना पड़ सके, ताकि उसका भी अपना वजन होता है ताकि हम लोग एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच को हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम को यूज़ करने के लिए, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल होती है। स्टॉप वॉच को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेसिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतने सेकेंड में तुमने ये काम करना है तो इतने टाइम के लिए स्टॉप वॉचेस लगाई जाती है। फिर एक डिजिटल होती है और एक एनालॉग होती है।
डिजिटल क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। डिजिटल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, 2 नीडल्स होती हैं, नॉब, ठीक है, 2 नॉब्स होती हैं, नॉब भी, ठीक है। नीडल रिप्रेजेंट द सेकंड्स, ठीक है। स्मॉल नीडल रिप्रेजेंट द मिनट्स, एक नीडल मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है, एक सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मैयरिंग इसकी क्या होती है? जब मैयर करना होता है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल को, ठीक है, तो वो क्या करता है? द बोथ नीडल स्टार्ट मोशन, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम जीरो पोजीशन, ठीक है। जब फिर हमें क्या बताता है? इतने सेकंड में इतना काम किया, फिर सेकंड्स के थ्रू हमें रीडिंग देता है, ठीक है। डिजिटल स्टॉप वॉच हमारे पास वैल्यू ऑफ टाइम देती है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स की फॉर्म में देती है, ठीक है, कि हम लोगों को नंबरिंग देती है, नंबरिंग क्या आ रही है। और हमारे पास जो दूसरी है एनालॉग, उसमें हम लोगों को क्या है? नीडल्स होती हैं, नीडल फिक्स टाइम बताती है, इतना टाइम, इतना मिनट, इतने सेकंड में किया। और डिजिटल हम लोगों को क्या बताती है? नंबरिंग की फॉर्म में बताती है कि इसकी हमारे पास रीडिंग क्या है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो बटन्स होते हैं, ठीक है। वन जो होता है, एक द टॉप होता है, टॉप बटन होता है एक्सप्रेस, ठीक है, जिसको हम टाइमर के लिए स्टार्ट के लिए करते हैं। और एक जो बटन होता है, एक प्रेस टाइम होता है, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है, एक डिस्प्ले होता है स्क्रीन के लिए। सेकेंड बटन इज ऑल्सो यूज टू record split times to lap times when the split button is passed while the watch is running. The display freezes allowing the clip elapsed, ठीक है, टाइमिंग। इससे भी यही चीज़ें हैं कि हम लोग मेजर कर सकते हैं टाइम में, ठीक है, थोड़ा बहुत ही जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मेजरिंग सिलेंडर भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इतने फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, फिर सेकंड रीडिंग निकाली हुई है। फिर हम लोगों को क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ की कैन बी कैलकुलेटेड by finding the difference in the rise of water level. इसमें क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी फाइंड बाय मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ट्रांसफर प्लास्टिक ग्लास होता है, ठीक है। वर्टिकल स्केल्स होते हैं, मिलीमीटर्स में होते हैं, सेंटीमीटर्स में भी होते हैं, क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड बॉडी एज शोन एज a key as in 1.5, ठीक है। वाटर इज poured into a measuring cylinder until the cylinder is about half fill, ठीक है, हाफ फिल। फिर क्या करें? वॉल्यूम इज मेजर्ड, उसका वॉल्यूम मेजर किया जाता है, ठीक। फिर एंड देन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट इज लोअर जेंटली इनटू इट। फिर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, फिर उसका सेम वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाला, उसका हम लोगों ने मेजर किया, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली इमर्ज, तो जब उस तब करेंगे जब हाफ इमर्ज हो, तब क्या होगा? जब पूरा अंदर डिप कर दें तब क्या होगा? तो डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग हमें देता है सिलेंडर, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप थी, और ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि आपकी बुक में सॉल्व हुई है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एडवांसमेंट आई, ठीक है, टाइम टू टाइम डिफरेंट चीज़ें आई। फिर पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट थे। फर्स्ट जो था हमारे पास ये आया था, फिर स्टॉप वॉचेस थी, स्क्रू गेज था, फिर हमारे पास वर्नियर कैलिपर, फिर स्क्रू गेज आया था, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट मेजरमेंट्स, अभी हम इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इनको हम लोग स्टडी ज़रूर करते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या, इनसे हम लोग कैसे छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड और फाइंड द वॉल्यूम इन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें कन्वर्जन है, वॉल्यूम को लीटर में लिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब इज़ फाउंड डायरेक्ट फ्रॉम L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू L विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फाइंड द वॉल्यूम, 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कन्वर्जन कर लेंगे, इसमें कन्वर्जन हुआ है सिंपली 10⁻⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर होल क्यूब। तो हमारे पास जो है आ जाएगा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁶ मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻3। -6 में से 3 6 में से 3 गए तो 6 में से 3 गए तो -3 आता है, तो 10⁻⁻3 मीटर क्यूब आंसर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।